Hello and good morning to all of you. I welcome you all to the Raftar Daily Current Affairs series presented you by Alpha Years Academy and their beautiful team. I hope you all are doing good. So the first news of the day is that there is something called as CBS, okay, core banking solution on that are for banks, okay. Now there is something called as core financial service solutions, that is for NBFCs, that is non-banking financial companies. These are the companies which are registered under the Companies Act 1956, okay, and there are many more points which we will discuss in the coming slide. So what is CBS to banks? CFSS, core financial service solution, is to NBFCs. So what it does is that it provides a seamless customer interface anywhere anytime. आपका काम आसानी से हो जाएगा. इनेबल सेंट्रल डेटाबेस, आपका डेटाबेस अच्छे से होगा. और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको MISP बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सूटेबल बनाएगा वो. ओके, नाउ देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ NBFCs in by many grounds. One is deposit taking and the other one is non-deposit taking. Okay, so on basis of this there are three categories: base layer NBFCs, middle layer NBFCs and upper layer NBFCs. So what is middle layer NBFCs? These are the NBFCs, all deposit taking NBFC irrespective of asset size. मतलब जो भी NBFCs डिपॉजिट लेती हैं उनका एसेट साइज मैटर नहीं करता, वो मिडिल लेयर में आ जाएगी. और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो इनका जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से है या 100 करोड़ से ज़्यादा है वो आएंगी. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ पासिंग रेफरेंस. ठीक है, अपर लेयर NBFCs मतलब कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि ये क्या पूछ लिया, ये कौन सी NBFC की क्लासिफिकेशन है. तो ये एक टाइप, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो एक टाइप की क्लासिफिकेशन है. तो अपर लेयर क्या हुआ, वो RBI डिटरमाइन करती है. ठीक है, उसके कुछ रेगुलेटरी पैरामीटर्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे अपर लेयर डिसाइड करती है. मिडिल लेयर हमने पढ़ लिया. ठीक है, ओके. और बेस लेयर इज़ की इक्विवेलेंट टू NBFC इज़ नॉन डिपॉजिट बट थ्रेशोल्ड ऑफ, मतलब जो ये है इससे कम वाली जो होगी 1000 करोड़ से कम, वो लोअर बेस लेयर में आ जाएगी. तो NBFC मैंने आपको बता दिया, दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. दे आर नॉट अंडर द RBI एक्ट बट दे आर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. They cannot accept demand deposit. That means you cannot open a current account and a saving accounts there. They do not form a part of payment and settlement system, and of course because of that they cannot issue checks to you, and they also does not guarantee the insurance facility which is given to your current account deposit by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. की जो गारंटी है, जो इंश्योरेंस है, वो अभी आपको नहीं मिलता है. दिस गारंटी इज इन यूज्ड इन केस ऑफ बैंक रन. नाउ द सेकंड न्यूज़ वाज वाइल्ड फायर्स हैज़ इंटेंसिफाइड around the globe, and there is a report by UNEP and Grid Arendelle. Now what is Grid Arendelle? Grid Arendelle is a non-governmental organization. Sorry, there is a bit of problem with the slides today. We'll fix it by tomorrow. We apologize for that. A non-governmental organization based in Norway. And what is UNEP? Of course you know that is the leading global environmental authority established in 1972. It works under United Nations system. Okay, UNEP, United Nations Environment Program, तो UNEP के अंडर आता है. इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में. See, headquarters are never been asked in prelims, but someday it might get asked, and of course from the point of view of state services and other exam it is important. Not just quickly for the mains point of view, what are impact of वाइल्ड फायर. भाई आग जलेगी तो बहुत सारा कार्बन निकलेगा, तो इरिवोकेबल कार्बन साइकिल, हमारी कार्बन साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज देर विल बी एन इरिवोकेबल कार्बन इन दी एटमॉस्फेयर. इकोनॉमी एंड हेल्थ विल बी अफेक्टेड. ऑफकोर्स वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी, लोग मतलब कितने जानवर मर जाते हैं ना. अभी ऑस्ट्रेलिया में
आग लगी, देखा था उसके जंगल में कितने कंगारूज मर गए थे। तो दिस इज द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स। ओके, सॉइल इरोजन होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट वाटर कैचमेंट। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट न्यूज विच आर नॉट वेरी शॉर्ट टुडे। ओके, सो बट आर कंसल्टेटिव कमिटीज, ऑफ कोर्स दे आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, दीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज, दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द लोकसभा इज फॉर्म्ड। दिस मीन्स दैट वेन एवर लोकसभा गेट डिजॉल्व, उसके साथ ही ये कमेटी खत्म भी हो जाती हैं। एंड आफ्टर व्हेन द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कमिटीज़ बनाई जाती हैं। इनमें 10 से 30 मेंबर होते हैं, दे आर 10 to 30 members, and the membership of this committees are voluntary. Any member can leave the membership at any point of time. Now खजुराहो डांस फेस्टिवल, ऑफ कोर्स खजुराहो एक जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड सी देयर, यू नो दीज आर ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड दिस वर मेड बाय दी चंदेला डायनेस्टी। इसका जो पीरियड जब कब बनाए थे 1950 से 150 AD के बीच में। दिस वर मेड बाय चंदेला डायनेस्टी। कौन कौन से टेम्पल रिलीजन से रिलेटेड टेम्पल हैं वहाँ? हिंदू एंड जैन से। दे आर सिचुएटेड विद इन द विंध्यन माउंटेन रेंज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। इट वॉज डिक्लेयर्ड UN वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। नगारा स्टाइल, ऑफ कोर्स यू नो देर आर 3 स्टाइल्स नगारा, दैट इज related to north. Then there is Dravidian style, that is the southern style of temple making. The temple making style practiced in the Dravidian, in the southern states of India. Now, and there is something called as Visara, this is the mixture of these both. नगारा और द्रविडियन का जो है ये मिक्सचर है। ओके, एंड दिस टेम्पल्स वर रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम बाय अबू रिहान अल बरूनी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि UPSC ने एक स्टेटमेंट पूछी है कि क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज चाहिए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू खजुराहो टेम्पल्स। ओके, एंड स्टेटमेंट दे दिया कि इट वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय इब्न बतूता। अब ये है तो बहुत क्लोज ही, ज़्यादा क्लोज भी नहीं है भाई। इब्न बतूता जी ने इसके बारे में लिखा था 1335 में, 1335 में। अलबरूनी जी ने लिखा था 1022 में, बट फर्स्ट टाइम अलबरूनी जी ने लिखा था, बस ये याद रखिएगा। क्विकली, कुकी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं भैया? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो मैं ही बता देता हूँ। इट इज़ इन मिजोरम, इन फैक्ट इट इज़ फाउंड इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी ग्रुप्स हैं। म्यूजो लुसाई हिल्स हैं मिजोरम में, वहाँ पाए जाते थे ये, बल्कि म्यूजो हिल्स को ही पहले लुसाई हिल्स बोलते थे। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SPMCIL। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक टाइप का PSU है जहाँ पैसे छपते हैं भैया आपके, वहाँ पे जॉब्स भी निकलती हैं बहुत सारी, तो यू मस्ट ट्राई, इट इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसका जुरिडिक्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ये रखना। मिलान क्या है? मिलान एक नेवल एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में करी जाती है, और ये इसका जो कंट्रोल है वो अंडमान एंड निकोबार जो कमांडर इंडियन नेवी की उसके अंडर है। कोबरा वॉरियर 22, इट इज़ अ एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय UK रॉयल एयर फोर्स। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईस्टर्न ब्रिज 6, दिस इज अ एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ठीक है, एंड इट इज़ प्रैक्टिस एट द एयरफोर्स स्टेशन इन जोधपुर। जोधपुर में एक हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे ये की जाती है। तो ये याद रखना है, ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। देखो कैसे याद रखोगे, वो तो है ही नहीं इसमें, चलो बताएंगे किस दिन कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि ईस्टर्न ब्रिज इज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ठीक है, इंडिया इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ ओमान एंड ओमान इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ दिस in the place in news was Jordan. See, देखो ये मैप है, मैप देखो, ये जॉर्डन है। ठीक है, जॉर्डन से लगता हुआ ये इज़राइल है। ठीक है, इज़राइल और जॉर्डन के बीच में ही डेड सी है। जॉर्डन की एक ऑलमोस्ट इसलिए बोलते हैं यहाँ हल्का सा सी लगता है कहीं। ठीक है, तो ये जो है लैंडलॉक्ड वो भी है, देखो यहाँ देख रहे हो आप, पैसे जाएगा हल्का सा, सी से कनेक्ट हो जाएगा आगे। इसकी सऊदी अरेबिया से बाउंड्री है, इराक से बाउंड्री है, सीरिया से बाउंड्री। देखो कितने ख़तरनाक इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। ठीक है, तो राइट साइड में सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया,
लेबनान से भी इसका बॉर्डर लेबनान से इसका बॉर्डर नहीं लगता, ये याद रखना, लेबनान का बॉर्डर यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इजराइल से लगता है, ठीक है। और सॉल्ट लेक डेड सी आपको बताइए, इट इज़ दी लैंड लॉक्ड डेड सी जो एक सॉल्ट लेक है और उसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, ठीक है। आप जाओगे तो उसके ऊपर तैरते ही रहोगे, डूबना वहाँ बहुत ही मुश्किल है, अनलेस आप खुद को ही डूबो लो, ओके। सो जॉर्डन कंट्री को एक बार देख लो। ये लोकेशन जो है ना, ये जो है बड़ी हॉट बेल्ट है जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको माइंड में रखा करो, कभी भूलिएगा। और ये मेडिटेरियन सी है, इधर आप हल्का सा इधर नीचे आ जाओगे, अगर मैं जहाँ मैं पढ़ा हूँ तो यहाँ आपको रेड सी मिल जाएगा, उसके बीच में ऑफकोर्स आपको क्या मिलेगा, जरा बता दो कौन सा केलान जोड़ता है मेडिटेरियन सी और रेड सी को, ओके। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। I thank you all and I wish you a very happy day. Thank you and we shall see you tomorrow. Take care.